गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। लेक्चर 1 और लेक्चर्स 2 और फाइनली लेक्चर्स 3 we have completed. Today is our lectures number 4 and in today's lecture what we are going to see, our one topic is left and that is the graphs of the polynomials. In a previous lectures I have discussed about the graphs of the polynomial. Now first of all, as your syllabus is there, you will get a four kind of polynomials: linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, and biquadratic polynomial. So we want to see the graph of all these four kind of polynomials. How is the graph of linear polynomials? How is the graph of a quadratic polynomial? How is the graph of a cubic polynomial? And biquadratic, that we are not going to see. See, first of all, how we can draw the graph. In last lecture I have explained for the plotting of the graph. See, to plot a graph we require the some points. Suppose any polynomial is given. See, first of all, the graph of a linear polynomial. See, p of x is equal to 3x plus 1. Is it a linear polynomial? Say yes or no. Yes, sure. And if it is a linear polynomial, why it is a linear polynomial? Because the power of x is equal to 1, and so it is called a linear polynomial. So what is the graph of the linear polynomial? The graph of a linear polynomial that always represented by a line, straight line in a coordinate system. Fine. So suppose here is a plane. See, graph of a polynomial. 1 minute. See, a graph of a polynomial that is always represented by a line. So suppose this is a coordinate system. In a coordinate system, the graph of polynomial is always represented by line. See, this kind of line, and this line should be anywhere. ये कहीं पे भी हो सकती है. See, this is a graph of a linear polynomial. See, and it is not always in this form. You may rotate this line. See, this is a graph of linear polynomial. It is anywhere. कहीं पे भी हो सकती है, रोटेट हो सकती है. This is a graph of linear polynomial. Clear? See, I just give a idea about the linear polynomial. See, the general form of linear polynomial is given as ax plus, sorry, आपके सिलेबस में तो एक ही polynomial है ना, कोई बात नहीं. So p of x is equal to 3x plus 1. Suppose it is a linear polynomial. How you can draw the graph of any polynomial? See, this p of x is equal to 3x plus 1, and this p of x is denoted by y. This p of x is denoted by y, because see here x, here two variable, one is x and second one is a y. This x is always belongs to r, and same time this p of x or y, this is a p of x, and the one another name of p of x is y, that is also always belongs to r. Clear? By using this x and y, in 9th standard we have studied about coordinate geometry. So by x and y we have a point. If you keep x and y both are together, you have a point. See, because in coordinate system the coordinate of any point is given by coordinate, and there are the two coordinates. One coordinate is x and second coordinate is a y. So here one is x and second one is a y. X you may select any number from r. From r you may select any number, and when you substitute x according to the calculation, you will get the p of x, and p of x is equal to 1. You trace these points in coordinate system. You trace more than 2 or 3 points and join them, you will have a graph. Understood? Fine. So this is the procedure. But for some polynomial, the graph is always a fixed. Okay, see, linear polynomial, it is always represented by line, but it is not compulsory. Which kind of line? It is a straight line, and that straight line should be anywhere in this coordinate system. There is not a fixed section.
about that line. It depends on this constants. Which kind of the constants the polynomial has. Accordingly, this line change its situation. क्लियर? वो कहीं पे भी हो सकती है, रोटेट भी हो सकती है, घूम भी सकती है. This is the line in coordinate system. Fine. So you please write down the one comment. The graph of linear polynomial is always a straight line. Full stop. I think we have noted that in previous lectures. Fine. So now here is a time to discuss the graph of a quadratic polynomial. See, p of x is equal to x square. Let me check how is a graph of a quadratic polynomial. First of all, we find out some points and we trace that points in coordinate system. We will have a graph. Let I say x is equal to 1. So what about the y? Y means p of x. So p of x, here x is equal to 1. So this one you substitute here. So this is p of 1. Fine. So p of 1 is equal to, here x you can substitute 1. So this is 1. So 1 square is equal to 1. Now you say one more, x is equal to 2. So you will get x is equal to 2. So this is p of 2. Here 2 square and that is 4. Suppose x is equal to 0. So you may get p of 0. So 0, here 0 square is equal to 0. Suppose x is equal to 1. Then suppose x is equal to minus 1. You may have p of minus 1. So x is equal to minus 1. Minus 1 square, you will get 1. Suppose x is equal to minus 2. Then you may have p of minus 2. So x is minus 2. This is minus 2. Minus 2 the whole square here. So this point is x1, y1. So this point is 1, 1. This point is 2, 4. This point is 0, 0. This point is minus 1, 1. This point is minus 2, 4. Now use this point in coordinate system and draw the graphs for this quadratic equations and see how the graphs. Clear? So let me try to draw the graph for this polynomial which is given as a quadratic. Clear? Please write down this thing. This is the way how we can plot the graph of a polynomial. We require some points. Fine. Now you are asking some minimum how many points are required. Fine. It depends on the quality of polynomials. For linear polynomial, 2 points are sufficient. For quadratic polynomial, as the power of polynomial is high, we require some more points because the behavior changes suddenly. So if we have the more points now, that will give more accuracy. More points, it means more accuracy. Is it? So if we have a more points, we will get more accuracy. But as the graph of linear polynomial, that is always a straight line. And for straight lines, how many points are required to draw a straight line? 2 points. So 2 points are sufficient. So for linear polynomial, 2 points are sufficient. And after that, I think depends on polynomials. For which category the polynomials is that. Okay? Fine. Because this behaves in how way we don't know. Clear? Let me see. Check it. Taya, please come. See, now let me try to draw the graphs for the polynomials. See here, x coordinate 1, 2, 1, 2, 0, minus 1, minus 2. Okay, y coordinate 1, 4. Suppose here is 1 and here is 4. Now see, 1, 1, 1, 1, first point. See, 2, 4, here is 2, here is 4. Then 0, 0, this is a point origin, we can say as a 0, 0.
then minus 1 1, minus 1 1, then minus 2 4, minus 2 4. Clear? Now join all this point. So see, let's say join this point. See, the graph of polynomial is ready. I request all of you, please draw the graph, rough sketch in your notebooks. This is a graph of p of x is equal to x square. But as I already said, p of x is noted as y. So this is the graph of y is equal to x square. Okay? Please. All of you completed? Fine. Now observe this graph. How is this graph? This is called the parabolic graph. Students, this is called a parabolic shape. This is called a parabolic shape. Followed? Yes or no? Parabolic shape. So this graph is called a parabola. Means it's a parabolic shape. So graph of a quadratic polynomial is always a parabolic. The graph of a quadratic polynomial is always a parabolic. Okay? So we have noticed that the graph of a quadratic polynomial is always a parabola. So please write down one note. Please. Graph of a parabolic polynomial, graph of a quadratic polynomial, graph of a quadratic polynomial is always a parabolic, is always a parabolic, full stop. Okay? चलिए, ready? Now you want to see how is a graph of cubic and how is a graph of biquadratic. Fine? Or see one more thing. See parabolic graph, but it may be in different situation. Like this is also the parabolic. Fine? See this is also ये भी parabolic है. See? Okay? ये दोनों अलग अलग है. ये opening towards positive y-axis. इसका जो opening है ना, this is ये parabola in this side. So this is called the opening of the parabola. देखो ये open हो रहा है towards the positive y-axis और ये parabola देखिए opening towards the negative y-axis. Followed or not? Fine. So see opening, इसका opening है ना, this is the opening. So opening towards positive y and this is opening towards negative y. So opening towards positive y and opening towards negative y. Fine. Fine. See one more parabola. See, आप familiar तो हो जाओ कि हाँ ये parabola है. Fine. So this is one more. See, this is also the parabola. Fine. Okay. चलिए. अब एक intelligence method discuss कर लेते हैं. ठीक है? As I plotted the number of parabolas. See this parabola and this parabola. Do find any technical difference between both this parabola? चलिए नोटिस करिए दोनों पैराबोला को. Do find any technical difference between both the parabola? अगर लाइव क्लासेस होता तो मैं आप ही के पास से आंसर लेता. What's the technical difference between both parabola? बताइए. See this parabola and this parabola. This parabola intersecting the x-axis. X-axis, y-axis तो पता है ना? This is x-axis, this is y-axis. This is x-axis, this is y-axis. So see this parabola intersecting x-axis. Fine. But this parabola, see throughout the light, it's not intersecting the x-axis. See this parabola, it also intersect the x-axis. ऐसा क्यों हुआ? और उसका analytical reason क्या होगा? See some parabolas are intersecting x-axis and some parabolas are not intersecting x-axis. Am I right? ऐसा क्यों हुआ? Yes or no? ठीक है.
पोलिनोमियल का जीरोस मालूम है? व्हाट इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल? बताइए, व्हाट इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल? फॉर अ वैल्यू ऑफ x, if the p of x is equal to 0, for which value of x p of x is equal to 0, so that value of x is called the zeros of polynomial. Am I right? So see, let me have the graphical explanation for the zeros of polynomial. मैंने आपको अभी भी समझाया कि आपका कोई भी पोलिनोमियल p of x है, see it is any polynomial. What is the another name of polynomial? P of x we can say as a y. Now what is the zeros of polynomial? Zeros of polynomial, it means when p of x is equal to 0, for which value of x p of x is equal to 0, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए p of x 0 हो जाएगा? अब p of x मतलब y. So what is the zeros of polynomial? Zeros of polynomial means y कोऑर्डिनेट उसका 0 होना चाहिए. से यस और नो. आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ाई की थी 9th स्टैंडर्ड में, बेसिक्स आपने सीखा था, लेकिन पॉइंट के बारे में तो सीखा था आपने. यू नो द पॉइंट, कि व्हाट इज अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. चलिए ये फिगर को यहीं रख के थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स दैट ब्लैक बोर्ड एंड लेट मी सी सम नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बाद में फिर से इसे डिस्कस करते हैं. चलो रेडी प्लीज. तैयार? सी लेट आई डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम. सी मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है. कोऑर्डिनेट सिस्टम having two axes, x axis and y axis. Suppose any point is in coordinate system, that is known as xy. So every point in coordinate system, it has two coordinate, x coordinate and y coordinate. Now what is x coordinate and y coordinate? See, if I draw the figure, this is x coordinate and this is y coordinate. Say yes or no. So what is x coordinate? Suppose I give a name of this point as P. So what is x coordinate and y coordinate? X coordinate means distance from y axis. देखो we measure a distance from y axis. And what is a y coordinate? It means it's a distance from x axis. Reverse है. X coordinate. See the thing you don't know, please write down. X coordinate. It means distance from y axis. And y coordinate. It means distance from x axis. चलिए लिख लीजिए पहले, प्लीज राइट डाउन. x coordinate means distance from y axis and y coordinate it means distance from x axis. चलिए कंप्लीट कर दीजिए, लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन. कंप्लीटेड. Yes. See. So x coordinate. Now see the x coordinate it means distance from y axis and y coordinate it means distance from x axis. Now see these points I am making a one new points. See here. So for this point x coordinate is here. This is my x coordinate and this is my y coordinate. देखो. तो see पहले y coordinate ये था. Now this. So y coordinate is getting smaller. Fine. फिर से suppose p here. So x is this and y is this. So यहाँ पे y coordinate और small हो गया और ये p suppose it is on x axis. Suppose p it is on x axis. x axis पे है. इसके x coordinate तो ये रहा. देखो x coordinate. But what about the y coordinate? Y coordinate उसका 0 हो गया. देखो y coordinate क्या है वो समझिए पहले. What is the y coordinate? Distance from x axis. अगर पॉइंट x एक्सिस पे आ गया तो इसका x से डिस्टेंस कितना हो गया? 0. अगर आप आनंद में हो तो आपका आनंद से डिस्टेंस कितना है बताइए? 0 बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन आनंद. सो डिस्टेंस फ्रॉम आनंद इज इक्वल टू 0.
सो दिस पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ 0, लेकिन एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गया, लेकिन दैट इज अ वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। सो फॉर दिस पॉइंट द वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कोई पॉइंट्स आपके पास है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कब 0 होगा बताइए। फॉर एनी पॉइंट इफ इट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, if any point lies on x axis, what about its y coordinate? It's a 0. Yes or no? Okay. Reverse में बताइए, when the y coordinate is 0 for any point, when it is on x axis, कोई भी point का y coordinate 0 कब होगा, जब वो x axis पे होगा। Say yes or no? So please write down, एक note कर लीजिए, write down one note, write down. In coordinate system, write down, in coordinate system, if a point lies on x axis, in coordinate system, if a point lies on x axis, its y coordinate is 0, its y coordinate is 0, full stop, full stop. और रिवर्स में अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो उसका वाई से डिस्टेंस 0 हो जाएगा, सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इट इज एक्स, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 वाई। क्लियर? सो राइट डाउन वन मोर कमेंट, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, if a point lies on y-axis, its x coordinate is 0, full stop. If a point lies on y-axis, its x coordinate is 0. ठीक है, चलिए fine. So this is the knowledge of the coordinate geometry. Okay, fine. Now we are talking about the graphs of polynomials. तो चलिए वापिस आते हैं, we will get back. चलिए रेडी, फाइन. So see here. Now in this graph, if you notice, if you observe, you will get the two things. This graph never touches the x-axis and this graph touches the x-axis. उसका पोलिनोमियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? What would be the effect on the polynomial? So see, here the graph is touches the x-axis. अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा, बट व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट इज 0. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑन एक्स एक्सिस. पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 2, एक्स एंड वाई. वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स से डिस्टेंस. अगर आप एक्स पे ही हो तो एक्स से आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 0. तो ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0. Understood? So what about the y coordinate? 0. Clear? इसका भी y coordinate, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, so one point I can say as x10 and one point I can say as x20. Clear? x coordinate तो दोनों के अलग अलग हो गए, but y coordinate is 0 and what y coordinate is 0. For this graph, all the points you will never find the y coordinate is 0. क्योंकि ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. यस और नो? इसमें ये पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं होगा. ये पैराबोला पे 2 पॉइंट्स हैं जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. चलिए इतना समझ गए. ये पैराबोला में जो पॉइंट्स है इसके वाई कोऑर्डिनेट्स 0 हो सकते हैं. पूछो क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं. ये पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो सकता है. पूछो क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है. क्लियर? और ये पैराबोला में वैसे ही होगा. ठीक है, फाइन. अब अभी मैंने बताया कि अगर ये कोई इसका कोई पोलिनोमियल का कोई इक्वेशंस तो होगा ना, और पोलिनोमियल का इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p of x है. से यस और नो? हाँ. अब
यहाँ पे ये पोलिनोमियल पे जितने भी पॉइंट्स है वो के ऐसे कोई पॉइंट्स है ये ग्राफ्स पे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, से यस और नो? हाँ, तो देयर आर द सम पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है ऐसे? 2 पॉइंट। से यस और नो? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 2 पॉइंट। ओके, जिसके लिए उसका y 0 हो जाता है। y का मतलब क्या होता है? p ऑफ x। इसका मतलब ये ग्राफ्स के लिए, ये ग्राफ्स पे ऐसे 2 पॉइंट्स है। फॉर दिस ग्राफ देयर आर द 2 पॉइंट्स for which p of x y का 0 होना है। y का 0 मतलब p of x का 0 होना है। तो ये ग्राफ्स पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए p of x 0 हो जाएगा। हाँ या ना? अगर p of x मतलब आपको ऐसे 2 x मिलेंगे, एक x1 और एक x2, जिसके लिए y 0 हो जाएगा। So you will get a 2x, one as x1 and one as x2, जिसके लिए आपका p of x 0 हो जाएगा। लेकिन x की जो वैल्यू के लिए p of x 0 हो जाता है उसे तो हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? नहीं समझ रहे हो? x की अगर कोई वैल्यू के लिए p of x 0 हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसका y 0 हो रहा है, मतलब p of x 0 हो रहा है, मतलब x की दो वैल्यू के लिए p of x 0 हो रहा है, मतलब x की दो वैल्यू के लिए p of x 0 हो रहा है, मतलब कि these are the zeros of polynomial. So this value and this value are called the zeros of polynomial. Understood or not? So if polynomial zeros is possible, then graph must intersect the x-axis. Not understood? So graphical knowledge हमें सिखाता है कि ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y 0 हो रहा है, मतलब p of x 0 हो रहा है, मतलब उसके जीरोस पॉसिबल है। ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं होगा, मतलब p of x कभी 0 नहीं होगा, मतलब इसके लिए p of x 0 नहीं होगा, मतलब ये ग्राफ्स के लिए ये पोलिनोमियल का जीरोस हमें नहीं मिलेगा और ये पोलिनोमियल का जीरोस हमें मिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? नॉट अंडरस्टूड। शी वन मोर थिंग, देखो, चलिए आप वहां से यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पे बैठे हो वहां से मोबाइल में से बाहर आ जाइए। चलिए आ जाओ, और ये जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। क्या ड्रॉ करना है? वन लाइन दैट आई वांट टू ड्रॉ। चलिए कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कहीं पे भी, जैसे आपके मन में आए वैसी एक लाइन। ऑन बिहाफ ऑफ यू आई एम ड्रॉइंग द लाइन। शी ऐसे नहीं पसंद है? ठीक है, चलिए एक और, चलिए ऐसे चलेगा? नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो सी, अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, से यस और नो? हाँ, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि y 0, मतलब कि p of x 0, मतलब कि इसका ये पोलिनोमियल का जीरोस होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसे? तो एक्स एक्सिस को। हाँ या ना? तो अगर आपको कुछ ये इसके जीरोस होंगे? नहीं। जीरोस के लिए क्या जरूरी है? ग्राफ्स का एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। पूछो क्यों? Because if it intersect the x axis, then its y coordinate is equal to 0. Y coordinate is called as p of x. It means p of x is equal to 0 for the value of x. It means the zeros are possible. But if it not intersect the x axis, then y coordinate can never be 0. Means p of x can never be 0. मतलब उसका zeros नहीं होगा। Clear? So this is the graphical knowledge. This is the graphical knowledge. अगर आपको कोई भी ग्राफ्स दे दिया जाए और पूछे कि भाई इसका जीरोस है कितने हैं, अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे तो 2 जीरो, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 3 जीरो, 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 1 जीरो। अंडरस्टूड और नॉट? सो गेट द जीरोस फ्रॉम ग्राफिकल नॉलेज, गेट द जीरोस फ्रॉम ग्राफिकल नॉलेज। तो सी, चलिए रेडी? अब जरा एक कमेंट नहीं है तो थोड़ा एक नोट लिख देते हैं, प्लीज राइट डाउन। For a quadratic polynomial, write down note. For a quadratic polynomial, the graph is always parabolic.
full stop. Now write down note, write in new line. If a graph of polynomial intersect the x-axis in number of points, in number of points, in number of points. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स? सो ब्रैकेट्स में लिखो 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 डैश डैश डैश. क्लियर? If a graph of polynomial intersect the x-axis in number of points, तो नंबर ऑफ पॉइंट 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3. अगर 0 हो गया तो नंबर ऑफ पॉइंट 0 हो गया मतलब पोलिनोमियल 0 नहीं होगा. पोलिनोमियल का 0 इज नॉट पॉसिबल. 1 हो गया तो पोलिनोमियल का 1 0. 2 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो पोलिनोमियल के 2 zeros. 3 पॉइंट्स में करे तो 3 zeros. लाइक दैट. अंडरस्टूड? इंटरसेक्ट number of points in bracket 0 1 2 3 0 1 2 3 full stop. Clear? In number of points और मतलब it means full stops. It means for zero intersection मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर 0 होंगे. क्लियर? सो इट मीन्स फॉर 0 इंटरसेक्शन नंबर ऑफ zeros आर 0. फॉर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर ऑफ zeros इज 1. फॉर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट नंबर ऑफ zeros आर 2. डैश 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 छोड़ दो. ओके चलिए कंप्लीट कर दीजिए. चलो रेडी फॉर नेक्स्ट. चलिए तैयार? फाइन. सो नाउ ओके. सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ्स कैसा होगा बताइए? पैराबोलिक. अब आप पूछोगे सर क्यूबिक का ग्राफ्स कैसा होगा? देखो क्यूबिक का जो ग्राफ्स है ना वो इक्वेशन के हिसाब से वेरिएश होता है. क्लियर? मतलब कोई पर्टिकुलर उसका डायग्राम नहीं है. जैसे लीनियर का ग्राफ बताया, बराबर? लीनियर जो पोलिनोमियल है उसका ग्राफ्स बताया स्ट्रेट लाइन. ठीक है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने आपको बताया पैराबोलिक. वैसे क्यूबिक का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. क्लियर? मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं. ग्राफ्स कुछ ऐसे होता है और उसकी मूवमेंट्स होती है. क्लियर? और पैराबोला भी फिक्स नहीं है लेकिन पैराबोला डायग्राम बनाएगा वो फिक्स है. तो क्यूबिक में ग्राफ कुछ ऐसे होता है. दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब. क्लियर? ठीक है? अब ये इक्वेशन जैसे जैसे चेंज होगा इस हिसाब से ये उसका डायग्राम बदल जाएगा. क्लियर? इट चेंज इट्स डायग्राम. फिक्स्ड डायग्राम्स नहीं रहेगा. मैंने बताया जैसे डिग्री हायर होगी ऐसे ऐसे वेरिएशंस ज़्यादा होंगे. इसमें यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया 3x क्यूब. क्लियर? फिर 3x स्क्वायर कर दिया. देखो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल लेकिन इसमें ये प्योर क्यूबिक है. मतलब क्यूबिक के अलावा कुछ नहीं है. इसमें क्यूबिक भी है क्वाड्रेटिक भी है. तो ये पोलिनोमियल फिर कुछ अलग ग्राफ आएगा. तो इसका कोई डायग्राम फिक्स नहीं है. वो डिपेंड्स करता है हाउ द पोलिनोमियल विल बी देयर. अंडरस्टूड? क्वाड्रेटिक में तो कैसे भी होगा. देखो क्वाड्रेटिक में p ऑफ x सिर्फ x स्क्वायर होगा या x स्क्वायर के साथ x होगा या x स्क्वायर के साथ x के साथ कांस्टेंट होगा. ये तीनों केस में ग्राफ्स पोलिनोमियल होगा. तीनों केस में ग्राफ्स इज ऑलवेज पोलिनोमियल. अंडरस्टूड और नॉट? क्यूबिक में फिक्स नहीं है. कोई पर्टिकुलर डायग्राम्स नहीं है. क्लियर? फिर भी मैं आपको कुछ पोलिनोमियल्स के ग्राफ्स बता दूँ. क्लियर? देखिए ये जो ग्राफ्स है ये लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ्स है. ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ्स है. आपको कोई पूछे
ये पोलिनोमियल का जीरोस है, तो देखो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या ना, मतलब इसका जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक बार कि क्वाड्रेटिक के जीरोस हमेशा 2 होते हैं, लीनियर के जीरोस हमेशा 1 होते हैं, इसीलिए देखो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 1 एंड 2। देखो ये भी पैराबोला है, ये मैंने बताया ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, सो दिस इज आल्सो पैराबोला। क्लियर इज ये, ठीक है। ये इसका, हाँ, ये इसका पोलिनोमियल का नाम है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल का नाम है 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, ओके। ठीक है, ये भी पैराबोलिक है, हाँ या ना। देखो फिक्स है ग्राफ, पैराबोला पैराबोला, हाँ या वो, इसके लोकेशंस अलग अलग, लोकेशंस बदल जाते हैं, लेकिन ग्राफ्स जो होता है उसका टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कंफर्म पैराबोला। क्लियर। उसी तरह लीनियर में स्ट्रेट लाइन, अब देखो क्यूबिक में आपको बता रहा हूँ, ये भी पैराबोला क्वाड्रेटिक के लिए है, ठीक है। ये भी पैराबोला क्वाड्रेटिक के लिए, ये भी पैराबोला। क्लियर। लेकिन देखो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पोलिनोमियल का जीरोस पॉसिबल नहीं है। ये पैराबोला भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पोलिनोमियल का जीरोस पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, ठीक है। देखो वो ग्राफ्स में थे, ये देखो ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स, जीरोस बताओ 2, एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स, जीरोस बताओ 2, एक्स एक्सिस इन 1 पॉइंट, जीरोस बताओ 1, एक्स एक्सिस इन 1 पॉइंट, जीरोस बताओ 1, नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ये पोलिनोमियल के जीरोस नॉट पॉसिबल, ये पोलिनोमियल नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, ये पोलिनोमियल के जीरोस नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब देखिए ये क्यूबिक, देखो मैंने यहाँ पे क्यूबिक कुछ ऐसे बताया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो ये कितना वेरिश हो गया, देखो तो क्यूबिक का कोई डायग्राम फिक्स नहीं है, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ्स। क्लियर। इसमें एक्स क्यूब के हैं और एक्स है, क्वाड्रेटिक नहीं था। देखो ये एक और, ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसमें एक्स क्यूब है और क्वाड्रेटिक है, देखो बदल जाते हैं ग्राफ्स। क्लियर। देखो ये जैसा मैंने बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देख लीजिए। क्लियर। ओके, तो क्यूबिक, अब बाय क्वाड्रेटिक तो उससे भी टफ होगा। देखो जितने पावर्स हाई होते हैं ना, उतना वेरिएशंस ज़्यादा होता है। क्लियर। एज द पावर इज हाई द वेरिएशंस इज हाई, बहुत हाई वेरिएशंस होते हैं। क्लियर। तो वी कुडंट जज कि विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डायग्राम्स इज दैट। ओके, फाइन। सो आपको एक चीज़ तो समझ में आनी है, यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स तो वो ठीक है, लेकिन ग्राफ से हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ग्राफ्स को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इज देयर जीरोस फॉर दिस पोलिनोमियल, यस और नो। सो इफ इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, any graph intersect the x axis, then the zeros is there. And if the graph never intersect the x axis throughout its life, then it has no zeros. Clear? Chaliye, ready? So see some examples, graphical examples are there where you have to judge from the graph कि zeros are there, yes or no. Is it? So the first exercise of your textbook, देखो textbooks के भी graphs देख लेते हैं। चलिए, ready? देखो ये टेक्स्ट बुक है, ये लीनियर पोलिनोमियल, देखो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन तो हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा। क्लियर। एवरी टाइम इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। सिर्फ एक टाइप्स की स्ट्रेट लाइन्स है, मैं आपको बता दूँगा, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करे। देख लीजिए, वो भी क्लियर करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, देख लीजिए, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस है ना, उसे पैरेलल हो जाएगी। ऐसी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फॉलोड? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर। तो इसका जीरोस नहीं होगा। ओके, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, देख लीजिए। देखिए, ऐसे एक्सटेंड करिए, ऊपर एक्सटेंड करिए। ओके, क्लियर। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्लियर। 3 टाइप्स की लाइन्स होती है फॉर योर नॉलेज, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और तीसरी होती है इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिर्फ एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, या तो एक्स को या तो वाई को। इसमें हॉरिजॉन्टल वाई को इंटरसेक्ट करती है और वर्टिकल एक्स को, और जो इंक्लाइन लाइन होती है वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, एक्स को और वाई को।
Is it? At a time simultaneously it intersect both the axes x and y. Clear? Fine. See one more. Ready? So let's we see the graph. See, this is called the inclined line. This is called the inclined. See, x-axis it intersect the x-axis, it intersect the y-axis. If you have a textbook, see the page number 22. चलिए ready? See. देखो x-axis it intersect x-axis, it intersect the y-axis. So it intersect both the axes. Clear? चलिए ये देखो पैराबोलिक है. This is this. It intersects the x-axis in two different points. तो zeros कितने हुए उसके? 2. It intersects. चलिए ready? So see, this is a parabolic. And say it intersect the x-axis in two different points. देखिए 1 and 2. तो इसके zeros कितने हुए बताइए? How many zeros it has? Zeros का मतलब p of x zeros. p of x का मतलब y. मतलब y zeros. y कब जीरो होगा? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया, ये रहा. y zeros कब होगा? बोलिए. से y कोऑर्डिनेट zeros कब होगा? जब पॉइंट x एक्सिस पे होगा. ठीक है? तो ये पैराबोला है. ओके. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स हम नोटिस करते हैं टेक्स्ट बुक्स में. अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, पेज नंबर 24 पे आ जाइए. चलिए रेडी? सी फिगर 2.3 देखिए कौन सा ग्राफ्स लग रहा है, देख लीजिए. पैराबोलिक ग्राफ. हाँ या ना? देखिए 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है. एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है ए डैश. हाँ या ना? तो इसके जीरोस कितने हो गए? एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट किया? 2. सो इन हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस. सो दिस इज अगेन पैराबोलिक. ये ओपनिंग टुवर्ड्स मैंने बताया ना, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव. अगेन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स. सो हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल? 2 जीरोस. सी फॉर दिस it intersects only one point. See here. So how many zeros? Only 1. Again it intersect in 1 point. So how many zeros? 1 zeros. Okay. Next. देखो सभी पैराबोला, 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 पैराबोला. पैराबोला को तो पहचानते हो ना? Say yes or no? Fine. So these are the parabolas. Clear? मैं आपको see one more parabolic. But it not intersect the x-axis. Okay. So how many zeros? No zeros. देखो one more parabola. It does not intersect the x-axis. So how many zeros? No zeros. Clear? See. ये देखो, ये क्यूबिक है. Sure. Okay. This. So ये क्यूबिक है. लेकिन इंटरसेक्ट कितने पॉइंट में कर रहा है x-axis को, वो देख लीजिए. See 1 point. पेज नंबर 26 अगर टेक्स्ट बुक से तो 1 point, 1 point and 1 point. So 1, 2 and 3. So in how many points it intersect the x-axis? 3 points. So कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए? 3. ये देखो, ये मैं प्योर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. देखो ये ओके. एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. हाउ मेनी जीरोस? 1 जीरोस. सी ये भी एक पॉइंट. देखो ध्यान से, फिगर 2.8 है. देखो एक ये जीरोस और एक ये वाला, ये एरो किया है वो एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ पे. तो टोटल जीरोस कितने हुए उसके? 2. क्लियर? चलिए अब पेज नंबर 27. इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक्स, कम ऑन पेज नंबर 27. चलिए इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक, सी हियर. एग्जाम्पल नंबर 1. आई एम रीडिंग द एग्जाम्पल्स. I read the example. See, look at the graphs in figure 2.9. Some of the graphs are given. Total 6 graphs are given. Each is the graph of polynomial y is equal to p of x, where p of x is a polynomial for each of the graphs. Find the number of zeros of p of x. So we have to see the graph, observe the graph, and we have to tell how many zeros are there. चलिए तैयार? Fine. See this graph. First graph. बताइए हाउ मेनी जीरोस? जीरोस मतलब इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस. जीरोस मतलब y जीरो. y तब जीरो होता है जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है. हाँ या ना? तो एक्स एक्सिस पे होने के लिए ग्राफ्स को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड और नॉट? तो सी दिस. देखो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है हियर. ओके. इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 पॉइंट्स. हाउ मेनी जीरोस? 1 जीरोस. क्लियर? ये पैराबोलिक आया. क्लियर? सी 1 and 2 points. So how many zeros are there? 2 zeros. See here. 1 point. देखिए 1,
और एक यहाँ पे है this and one here. Okay, see, so total how many points? See, one is this and one is this, so 2. Clear? So how many zeros are there? 2 zeros. See, straight line आई भाई हमारी. स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया ना कितनी टाइप्स होती है, बताइए 3 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन. देखिए इसे, कौन सी लाइन है बताइए? इंक्लाइन. सो सी हियर 1 पॉइंट, एक्स एक्सिस, ये तो इंटरसेक्शन है लेकिन वाई एक्सिस के साथ है. टू हैव अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी नीड द इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस. सो ओनली 1. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1. और वैसे भी मैंने बताया ना लीनियर के जीरोस कितने होते हैं? 1. क्लियर? ओके. क्वाड्रेटिक के 2 हो सकते हैं. चलिए ये देखिए पैराबोला. क्लियर? एंड शी 1 पॉइंट. ओके. फिर आप पूछोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो पैराबोला है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होने चाहिए. आपने बताया था यहाँ पे तो 1 जीरोस होते हैं. से आसान वो 2 सेम. मैंने एक इक्वेशन नहीं दिखाया था आपको लास्ट टाइम वो जूम मीटिंग पे? 4x² - 4x - 1 = 0. सो 2x - 1 द होल स्क्वायर. तो जीरोस तो 2 होते हैं लेकिन दोनों सेम हो जाते हैं. सो हमें तो ऐसा लगता है कि एक ही है. नॉट अंडरस्टूड. बोथ आर सेम. अगर 2 चीज़ें लेकिन दोनों सेम हो जाती है तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई एक ही है. हकीकत में 2 होता है. नॉट अंडरस्टूड. क्लियर? बोथ आर सेम. तो हम क्या करें? पहले वाला वो भी 1/2 हो गया, दूसरे वाला भी 1/2. शो व्हाट आई कैन डू. तो द थिंग आर 2 बट वी कैन से इट्स अ 1 लाइक दैट. क्लियर? चलिए रेडी. सी, सो हियर 1 0. सी दिस इज 1 more. सो सी ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस. देखो एक पहला, एक, ये एक, 2, ये एक, 3 और ये एक 4. तो कौन सा ग्राफ होगा? बाय क्वाड्रेटिक. ऑब्वियसली बट नेचुरल है, 4 जीरोस. कौन सा ग्राफ होगा? बाय क्वाड्रेटिक. चलिए ठीक है. आई थिंक यू एंजॉय दिस थिंग्स. क्लियर? अब देखो पेज नंबर 28 पे टेक्स्ट बुक्स है ना आपके पास. इफ़ यू डोंट हैव द टेक्स्ट बुक्स, ग्रुप्स में लिखना कि वी डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स. तो ये जो पेपर है ना वो मैं फोटोकॉपी करके आपको ग्रुप्स में सेंड कर दूँगा. क्लियर? इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक इट्स फाइन. इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज 2.1 में आपको होमवर्क्स में दे रहा हूँ. शी सम ग्राफ्स आर गिवन. टोटल 6 ग्राफ्स आर गिवन and you have to find how many zeros are there. 1 zeros, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros that you have to observe from the graphical representation. Clear? Okay. Okay. So homework for exercise 2.1. चलिए मैं फोटोकॉपी व्हाट्सएप में लेक्चर्स के साथ शेयर कर दूँगा. क्लियर? So those who are not having textbooks they can see. चलिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं ग्राफिकल. ओके ओके. थोड़े और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भेज दूँगा. क्लियर? वेयर द ग्राफ्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर. चलिए क्लियर? ठीक है. सो लेट यू विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट जो है वो रिलेशंस है कोएफिशिएंट्स के बीच का. ठीक है. गुड एक्सरसाइज. Okay, so we can keep our lectures up to here. Fine. Okay. Enjoy the day. Fine. And we will go meet in the next lecture. Fine. Okay. All the best.